Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. Students, we are learning our third chapter, types of software. Till now in this chapter we have discussed about system softwares and we have also discussed about two categories of system software. In this class we have to discuss about the remaining types of system software and then we have to do the introduction of application software. Now let's start this class. First we will discuss this term utility software. This utility software is the third category or third type of system software. Well, in general, in our computer system, utility softwares are those special kind of softwares which can help you or your computer system to maintain the proper functionality of computer. Fine. Generally, it helps our computer to function or to work smoothly. Fine. Now, let's take some scenarios. Suppose you want to back up your data, you want to delete some data, you want to recover your data, or you want to scan your computer for any virus or for any error. Fine. For all these, the softwares that you can use, all these softwares comes under this category. Fine. Now, utilities are those helpful programs that ensure the smooth functioning of the computer. Fine. In easy words, we can say that these are the programs which can ensure the smooth functionality of the computer system. Fine. Now, utilities are meant to assist your computer. फाइन. ये क्या करती हैं भाई? These utilities are generally made to assist our computer system. Now let's discuss about these two terms in detail. Well, we have some utilities which can help us to backup data, whereas we have some utilities which can help us to remove our files or recover our data that we have deleted accidentally. Fine. Then we have some utilities which can help us to find or arrange our information. Then we have some utilities with the help of which we can avoid the virus risk or we can remove the viruses if we have any. Fine. In other words, we can say that utility program performs the housekeeping functions. Fine. Utilities क्या करते हैं भाई? ये generally housekeeping functions करते हैं. अभी housekeeping functions क्या होते हैं भाई? In general, housekeeping means arranging everything and managing the things that we have in our हाउस. फाइन. घर की सारी चीज़ों को मैनेज करना, उनको अरेंज करके रखना हाउस कीपिंग फंक्शन के अंदर आता है. सिमिलरली कंप्यूटर में जितना भी डेटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उस डेटा को मैनेज करना, उसको स्टोर करना और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने में कंप्यूटर और यूजर दोनों की हेल्प करने का काम होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का. फाइन. लेट्स टेक इन सिनेरियो. सपोज बाय मिस्टेक आई हैव डिलीटेड सम ऑफ माय फाइल्स. अगर मैंने गलती से अपनी कुछ फाइल्स को डिलीट कर दिया है और अगर मुझे वो फाइल्स रिकवर करनी है, फॉर दैट आई कैन यूज अ रिकवरी यूटिलिटी. फाइन. उसके लिए मैं एक रिकवरी वाली यूटिलिटी का यूज करूंगा जिससे मैं अपने डिलीटेड डेटा को रिकवर कर सकता हूं. फाइन. नाउ लेट्स टेक वन मोर सिनेरियो. सपोज मेरे सिस्टम में एक वायरस अटैक आ गया. इट मींस मेरे सिस्टम में कोई वायरस था. फाइन. जो कुछ कंप्यूटर की फाइल्स को करप्ट कर रहा है या फिर कंप्यूटर में कुछ बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस हो रहे हैं जिन्हें मुझे रिमूव करना है. फाइन. देन फॉर दैट आई कैन यूज एनी एंटीवायरस. अभी जो एंटीवायरस है ये भी क्या है भाई? ये भी एक टाइप का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बिकॉज ये क्या कर रहा है? कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को स्मूथ बना रहा है. फाइन. नाउ लेट्स सपोज मुझे अपने डेटा को स्टोर करके रखना है क्लाउड पे. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे बैकअप लूंगा और जब मैं बैकअप लूंगा तो उस बैकअप वाली जो फाइल जनरेट करने का जो ऑपरेशन होगा वो भी क्या होगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही वर्क होगा. Fine. So it means everything that can help your computer to store your data, to save it or to use it for various operations is a part of this utility. Fine. ये जनरली सारे के सारे हाउसकीपिंग फंक्शंस कर रहा है, मतलब डेटा को स्टोर करना, उनको मैनेज करना, उनको रखने का सारा काम करता है. फाइन. अब we all know that in our computers or in our softwares we have some pros and we have some cons also. फाइन. सारे सॉफ्टवेयर्स में, सारे कंप्यूटर्स में, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं भाई, जनरली विद दीज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स वी कैन फिल दैट गैप. फाइन. विद दीज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स वी कैन सिंपली फिल दैट गैप. फाइन. अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई? उन सारे ग्लिचेस को, उन सारे फॉल्ट्स को दूर करने के लिए इन आर कंप्यूटर्स और इन आर एंड्रॉइड फोन्स वी हैव सो मेनी यूटिलिटी प्रोग्राम्स. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम यूजिंग माई मोबाइल फोन और मेरे मोबाइल फोन में कोई एक डेटा फेलियर हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ? कुछ डेटा डिलीट हो गया. फाइन. नाउ इफ दिस हैपन्स इन माई मोबाइल फोन तो यहाँ पर क्या होगा? मेरा एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बिकॉज विदाउट डेटा आई कैन नॉट यूज माई फोन. फाइन. नाउ इफ मैंने उसका बैकअप क्रिएट करा होता, अगर मैंने यहाँ पर बैकअप वाली यूटिलिटी का यूज करा होता तो मैं अपने डेटा को यहाँ पर रिकवर कर सकता हूँ. और अगर मेरे पास कोई रिकवरी सॉफ्टवेयर है जो क्या कर सकता है? डिलीटेड डेटा को रिकवर करने में हेल्प कर सकता है, तो भी मैं अपने डेटा को यहाँ पर रिकवर कर सकता हूँ. So similarly we have so many things that we can do. Fine. Now suppose you have any virus or any malware in your mobile phone or in your computer system. Fine. Now to scan that malware or to remove that malware from your mobile or your computer, you might need a
एंटीवायरस, और ये एंटीवायरस भी क्या है भाई, एक तरीके का यूटिलिटी प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है, हम लोग के कंप्यूटर को करप्ट होने से या बग होने से बचा रहा है. फाइन, नाउ लेट्स रीड दिस बॉक्स. Utility are those application programs that assist the computer by performing housekeeping functions like backup, disk और scanning, cleaning viruses. फाइन, जनरली क्या कर रहा है भाई, ये जनरली कुछ सिंपल हाउसकीपिंग फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है जिसमें डेटा का बैकअप करना या फिर वायरस के लिए स्कैनिंग भी इन्वॉल्व है. नाउ सम ऑपरेशंस और सम फंक्शंस आर गिवन हियर. फाइन, ये जो यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म्स अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये कुछ टाइप के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कंप्यूटर में पहले से होते हैं और कुछ को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं. वेल, द फर्स्ट दैट वी हैव इज फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट और फोल्डर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन्स में वी हैव दिस फाइल मैनेजर थिंग. फाइन, इन ऑल आर मोबाइल फोन्स, चाहे तुम कोई एप्पल का फोन यूज कर रहे हो, चाहे कोई तुम स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, इधर यू आर यूजिंग एनी एंड्रॉइड फोन. फाइन, इन ऑल दीज डिवाइसेस वी हैव अ फाइल मैनेजर. फाइन, वी हैव अ डेटा मैनेजर थ्रू विच वी कैन मैनेज आवर फाइल्स. हम लोग यहाँ के क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं. फाइन, हम लोग फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग फोल्डर्स में अपनी फाइल्स को ग्रुप कर सकते हैं. फाइन, तो ऑल दीज ऑपरेशंस आर अ पार्ट ऑफ आवर फाइल मैनेजमेंट. ये सब किसका काम होता है भाई, दिस इज द टास्क ऑफ आवर फाइल मैनेजमेंट और आवर फाइल मैनेजर. फाइन, तो अगर तुम्हारे फोन में कोई भी फाइल मैनेजर वाली ऐप है तो वो क्या है, वो एक यूटिलिटी प्रोग्राम है. फाइन, बिकॉज ये ऐप क्या करती है, ये दिस ऐप जनरली हेल्प अस टू वॉच और टू सी आवर फाइल्स और डेटा आइटम्स दैट वी हैव इन आवर कंप्यूटर. फाइन, सोचो अगर तुम्हारे फोन में फाइल मैनेजर नहीं होता. फाइन, अगर फाइल मैनेजर नहीं होता तो क्या करते हम लोग, तो क्या हम लोग डेटा को इजीली व्यू कर पाते, या फिर क्या हम लोग अपने सिस्टम में किसी फाइल को ढूंढ पाते, नहीं कर पाते ना हम लोग ऐसा कुछ भी. सपोज करो तुम्हारे लैपटॉप में या तुम्हारे कंप्यूटर में विंडोज एक्सप्लोरर ही नहीं होता, यानी वो माई कंप्यूटर वाला फोल्डर नहीं आता, तो क्या तुम अपनी हार्ड डिस्क को एक्सेस कर पाते? नो, इट वोंट बी पॉसिबल फॉर एनीवन देन ना. Fine, that's why this file management is a very important part of our computer system. Now, let's read and then discuss. This utility software is a program to organize and keep track of files and is better known as file management system or simply file manager. Fine, ये program क्या करता है भाई, ये हम लोगों की help करता है files का एक track maintain करने में. Fine, it generally helps us to maintain a track of our files. Now, traditional file management system or software lets you create new file, edit existing file, save a file. It even lets you manage files with the ability to group them into the folders. मतलब जितने भी मोस्टली फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो ग्रुप देम इन सेवरल फोल्डर्स. फाइन, नाउ other than basic file management, this utility softwares offer many features such as indexing and fast searching of data or files. Fine, अब जनरली ये जो फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं क्या करते हैं, ये हमारी फाइल्स को इजीली एक्सेस प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को. फाइन, यू माइट हैव सीन दैट व्हेनेवर वी गेट एनी न्यू फोटो और एनी न्यू वीडियो इन अ मोबाइल फोन, ये सारी चीज़ें हमारे फ़ोन में फोटोज़ वाली ऐप और वीडियोज़ वाली ऐप में शो होने लगता है. अब उस ऐप तक का इस फोटो या वीडियो को पहुंचाने का काम भी फाइल मैनेजमेंट वाले सॉफ्टवेयर का था. फाइन, नाउ along with that they also maintain the security of our documents. ये क्या करते हैं, सिक्योरिटी भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. फाइन, देन they also help us to link documents and version control and some other things. Fine, now Windows Explorer is the default manager available in MS Windows. Now you have to learn this term. ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा है Windows Explorer वाला, इसको लाइन को बिल्कुल रट लो, लर्न कर लो. Fine, that is Windows Explorer is the default file manager available in MS Windows. Fine, it means जितने भी Windows PCs आते हैं उनमें जो default file manager है, it is termed as Windows Explorer. Fine, and in our Android phones we have a simple file manager. तो उसका नाम याद करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन Windows Explorer का नाम याद रखना है. Fine, then we have some other file management softwares also. कुछ और भी softwares हैं such as Free Commander, Explorer++, Pathfinder, Directory Opus and some others. Fine, now let's talk about our second utility. Fine, अब जो हम लोग का second number पे utility software है that we have to discuss, और that is the most important one, it is antivirus और virus scanner और virus cleaner. Well, I don't think इसको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है, but still we will have to read this. थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. Fine, now let's read it first and then discuss this term. Well, this utility program ensures the virus free work environment. ये क्या करता है भाई, एक वायरस फ्री वर्क एनवायरनमेंट मेंटेन करने में हेल्प करता है. A computer virus
is a computer program that can inject other computer programs by modifying them in such a way as to include a copy of itself. Fine. Now, a virus not only copies itself but also makes the computer system behave abnormally. For instance, unknown or unmasked messages may get flashed, or unwanted music get played, और unwanted graphical displays might occur. फाइन, मतलब क्या हुआ भाई, जनरली ये जो एंटीवायरस है वो क्या करता है, हमारे सिस्टम में से वायरस को रिमूव करता है. बट बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज दिस वायरस. एक छोटा सा होमवर्क है बेटा तुम लोगों के लिए. फाइन, फॉर टुडे यू हैव दिस वन होमवर्क, यू हैव टू कमेंट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ वायरस. इस वायरस का जो फुल फॉर्म होता है आई थिंक हम लोगों ने क्लास 7 और 8 में डिस्कस करा है. सो यू हैव टू कमेंट डाउन दिस टर्म इन द कमेंट सेक्शन. अब आगे बढ़ते हैं भाई. फाइन, नाउ जनरली दिस वायरस इज अ काइंड ऑफ इन्फेक्टेड प्रोग्राम. ये क्या होता है, ये एक तरीके का इन्फेक्टेड प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर में स्नीक करके आ जाता है हमारी परमिशन के बिना, और फिर ये क्या करता है, बहुत सारी अलग अलग ऑपरेशंस करता है कंप्यूटर की वर्किंग को डिसरप्ट या डिस्ट्रॉय करने के लिए. फाइन, ये क्या करता है, ये अपनी कॉपीज क्रिएट करता है फाइल्स के अंदर. फाइन, along with that it also reserves the processing capabilities of our CPU. Fine, sometimes it also disrupts the processing task. Fine, कभी कभी ये किसी फाइल को ओपन नहीं होने देता है और बहुत सारे abnormal functions कंप्यूटर सिस्टम में होने लगते हैं. Now that's why it is very important for us to remove this thing. Fine, because अगर हम लोग इस वायरस को रिमूव नहीं करेंगे तो हम लोग इन जनरल अपने कंप्यूटर में प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे, फंक्शन नहीं कर पाएंगे. फाइन, नाउ an antivirus scans your disk for viruses and removes them. ये जो एंटीवायरस होता है भाई क्या करता है भाई, ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर में से वायरस को स्कैन करेगा और रिमूव करने में हेल्प करेगा. इफ एनी वायरस इज फाउंड, अगर कोई भी वायरस मिलता है तो ये क्या करता है, उस वायरस को रिमूव करने में हेल्प करता है. मोर ओवर, some antivirus softwares remains present in memory all the time so that they can detect the viruses. It means क्या हुआ कि in our computer system there are some antiviruses which generally works in the background. Fine, ये ऐसा वर्क क्यों करते हैं भाई, जैसे ही इसको कोई भी वायरस मिलेगा तुरंत क्या करेगा, उस वायरस को ब्लॉक करेगा और सिस्टम की फंक्शनैलिटी को फिर से रिटेन करने में हेल्प करेगा. Some most popularly used antivirus programs are Norton, McAfee, Quick Heal, and we have some others like we have K7, we have Kaspersky, we have Avast. Fine, there are so many. Our next term is encryption or decryption software. वेल, इस टर्म को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो टर्म हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं भाई पूरे कंप्यूटर में, फाइन, इन अ फुल कंप्यूटर ये टर्म बार बार रिपीट होती है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाली, तो इसको एक बार पढ़ो और इसको कभी भूलना नहीं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस थिंग. वेल, इन जनरल व्हेनेवर वी आर डूइंग समथिंग इन अ कंप्यूटर, फाइन, whether you are typing any text, you are sending a message, in everything we are using some kind of text. हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट का यूज करते हैं. अभी जो हम लोग टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा को लिख रहे हैं या जो हम लोग फाइल सेंड कर रहे हैं, फाइन, ये फाइल्स तो कोई भी रीड कर सकता है ना. सोचो जरा, मुझे बताओ. इट मीन्स जो मैसेजेस हम लोग सेंड करते हैं, ये जो डेटा हम लोग शेयर करते हैं, ये डेटा को कोई भी रीड कर सकता है. अगर इसको कोई भी रीड कर सकता है, इट मीन्स इसको अटैकर भी रीड कर सकता है, हैकर भी रीड कर सकता है, और कोई अननोन पर्सन जिसको ये मैसेज नहीं सेंड करना चाहता हूं मैं, वो भी रीड कर सकता है. तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाउ विल आई प्रोटेक्ट माई डेटा, मैं अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करूंगा. फाइन, नाउ टू मेंटेन डेटा सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए वी हैव दिस टूल ऑफ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन. फाइन, यहाँ पे हम लोग पास इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल हैं. वी हैव टू डिस्कस अबाउट दीज टूल्स नाउ. फाइन, फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट दिस टर्म इंक्रिप्शन, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिक्रिप्शन के बारे में. वेल, encryption refers to the conversion of electronic data into another form, encrypted form called ciphertext. फाइन, अब जरा इतने को पहले समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. फाइन, नाउ सपोज आई हैव सम डेटा, सपोज मैंने अपना पासवर्ड टाइप करा और लेट सपोज मेरा पासवर्ड था ABC123. अभी जो पासवर्ड है ये इतना इजी है कि कोई भी इसको रीड कर सकता है, कोई भी इसको गेस कर सकता है. फाइन, नाउ सपोज आई एम सेंडिंग दिस पासवर्ड बाय यूजिंग एनी नेटवर्क. अगर मैं इस पासवर्ड को नेटवर्क में सेंड कर रहा हूँ तो हो सकता है कोई अटैकर या कोई हैकर क्या करेगा, मेरे मैसेज को बीच में डिस्टर्ब करेगा, इस पासवर्ड को वहाँ से रीड करेगा और मेरे अकाउंट को एक्सेस कर लेगा भाई. अगर उसने ऐसा करा इट मीन्स मेरे अकाउंट की सिक्योरिटी यहाँ पर क्या हो गई, लीक हो गई. फाइन, नाउ टू मेंटेन डेटा सिक्योरिटी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने डेटा को इंक्रिप्ट कर देंगे. बेसिकली ये हम लोग नहीं करते हैं, कंप्यूटर अपने आप करता है. कंप्यूटर क्या करता है भाई, इन जनरल एवरीथिंग इन आवर कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन अ एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट.
फाइन, हमारे कंप्यूटर के अंदर सारा का सारा डेटा एक कोडेड फॉर्म में स्टोर होता है। एन्क्रिप्शन का मतलब होता है सिंपल टेक्स्ट को एक कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, और ये जो कोड लैंग्वेज होती है ये हमारे कंप्यूटर के अलावा और किसी भी सिस्टम को समझ में नहीं आती है। फाइन, दैट्स व्हाई आवर कंप्यूटर कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस एंड कन्वर्ट दैट डेटा बैक टू द नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट। फाइन, इट मीन्स क्या हुआ भाई, जो हैकर्स हैं या जो उनके कंप्यूटर्स हैं वो इस कोड को जल्दी समझ नहीं पाएंगे और हमारे डेटा की सिक्योरिटी यहाँ पर मेंटेन रहेगी। फाइन, अभी इसमें कुछ तुम लोगों को डाउट्स होंगे, डोंट वरी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। एक चैप्टर और है हमारे पास जहाँ पे इस टर्म को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो यू जस्ट हैव टू वेट टिल देन। अभी तुम लोगों को यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लर्न करनी है, दैट यू विल गेट बाय द नेक्स्ट टर्न। नाउ दिस encrypted data is generally termed as cipher text। फाइन, जो हम लोगों का नॉर्मल मैसेज था, जिस नॉर्मल मैसेज को हम लोगों ने क्या करा, कोड करा। इट मीन्स ये जो मैसेज था जब इसको मैंने कोड करा तो ये कोडेड जो मैसेज है इसको मैं बोलूंगा शिफर टेक्स्ट। ये जो कोडेड मैसेज हो जाएगा दिस विल बी टर्म्ड एज शिफर टेक्स्ट। फाइन, एंड दिस शिफर टेक्स्ट कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय एनीवन एक्सेप्ट ऑथराइज्ड पार्टीज। मतलब जो कंप्यूटर्स या जिन भी इंडिविजुअल्स ने मिल करके भी इस डेटा को इनक्रिप्ट करा होगा भाई वही समझ पाएगा। फाइन, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक खुद की कोड लैंग्वेज थी जिससे मैं कुछ लोगों से बात कर सकता हूँ। अब वो जो कोड लैंग्वेज है वो क्या है, लिमिटेड इंडिविजुअल्स के बीच में, मतलब सिर्फ वही लोग उसको समझ सकते हैं ना, और कोई अदर इंडिविजुअल्स को समझ नहीं पाएगा। सेम थिंग इज विद दिस एन्क्रिप्शन। नाउ नेक्स्ट टर्म वी हैव शिफर टेक्स्ट। अब ये शिफर टेक्स्ट क्या होता है भाई, शिफर टेक्स्ट इज अ टर्म यूज टू रिफर द ऑल्टर्ड डेटा। फाइन, शिफर टेक्स्ट क्या होता है, जो प्लेन टेक्स्ट को जब हम लोग एक कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं देन दैट कोडेड डेटा इज टर्म्ड एज ऑल्टर्ड डेटा। फाइन, ये जो ऑल्टरेशन होता है डेटा का, दिस ऑल्टरेशन इज डन बाय सम एल्गोरिथम्स। फाइन, ये ऑल्टरेशन जनरली कुछ एल्गोरिथम्स के थ्रू होता है एंड हेंस इट इज टर्म्ड एज शिफर टेक्स्ट। फाइन, नाउ सो एज टू मेक द डेटा अनइंटेंजिबल टू अनऑथराइज्ड यूजर्स। फाइन, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग शिफर टेक्स्ट को क्यों बना रहे थे, डेटा ताकि कोई अनऑथराइज्ड यूजर रीड न कर पाए। फाइन, नाउ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एन्क्रिप्शन इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डिजिटल डेटा stored in a computer system or transmit via the internet or other computer networks। फाइन, अब जनरली यहाँ पर ये जो मेन पर्पस था इंक्रिप्शन का वो क्या था भाई, इज टू मेंटेन आवर डेटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। फाइन, एंड ऑल्सो टू सेव दिस डेटा फ्रॉम अदर यूजर्स और सम इंट्रूडर्स। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टर्म डिक्रिप्शन। अभी डिक्रिप्शन क्या होती है भाई, अभी तो मैंने बताया कि जो डेटा है इसको हम लोग कोड कर रहे हैं ताकि इसको हैकर्स या इंट्रूडर्स रीड ना कर पाए, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर इसको हैकर्स और कोई और इंडिविजुअल रीड नहीं कर सकता है तो इसको जो नॉर्मल पब्लिक है जिसको मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ वो कैसे रीड करेगी। अब फाइन, नाउ सपोज आई एम सेंडिंग अ मैसेज टू यू, और अगर मैंने उस मैसेज को एन्क्रिप्ट कर दिया है तो भाई मैंने तो कोडेड फॉर्म में सेंड कर दिया, अटैकर से बच गया, अब तुम उसको रीड कैसे करोगे। फाइन, तो यहाँ पर क्या होता है, रिसीवर के एज में या फिर जब हम लोग डेटा को रीड कर रहे होते हैं तो रीडिंग के टाइम पे ये जो एन्क्रिप्टेड डेटा है इसको हम लोग कुछ एल्गोरिथम्स के थ्रू, फाइन, कुछ स्पेशल टाइप के प्रोग्राम्स के थ्रू वापस से अपने प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फाइन, नाउ दिस डिक्रिप्शन इज अपोजिट टू द टर्म एन्क्रिप्शन। इन दिस वी कन्वर्ट आवर शिफर टेक्स्ट टू द ओरिजिनल फॉर्म। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने शिफर टेक्स्ट को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग करेक्ट की। अब ये की क्या होती है भाई, हम लोग जब डेटा को एन्क्रिप्ट कर रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा था, वी हैव वन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम थी। इस एल्गोरिथम में हम लोगों ने कुछ स्पेशल पासवर्ड लगा दिया, उस पासवर्ड को हम लोगों ने नाम दे दिया की का। जब हम लोगों ने एल्गोरिथम में पासवर्ड लगाया और पासवर्ड से हम लोगों ने क्या करा, डेटा को अपने प्रोटेक्ट करा, तो ये डेटा क्या हो गया, एन्क्रिप्ट हो गया। अब जब मैंने इस डेटा को डिक्रिप्ट करना चाहा तो मुझे फिर से वो वाला पासवर्ड चाहिए होगा। फाइन, नाउ दैट पासवर्ड इज जनरली टर्म्ड एज की। फाइन, there are many utility softwares that provide facility for encryption or decryption of data। फाइन, हम लोग के पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो क्या करते हैं, डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने में हेल्प करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर आर लास्टपास, बिटलॉकर, वेराक्रिप्ट, 7zip, सिमेंटिक एंड पॉइंट एन्क्रिप्शन एंड सम अदर्स। फाइन, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। फाइन, नाउ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम्स, सर्विस रूटीन्स और टूल्स और यूटिलिटी रूटीन्स। फाइन, हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को और क्या क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग कहते हैं सर्विस प्रोग्राम, सर्विस टूल या सर्विस रूटीन्स। फाइन, दीज स्पेशली डिजाइन्ड टू हेल्प मैनेज एंड ट्यून द कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्म अ सिंगल टास्क और अ स्मॉल रेंज ऑफ टास्क एज अपोज टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच टेंड टू बी अ सॉफ्टवेयर सूट। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर को मैनेज करने में,
स्मूथ फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने में या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ट्यून अप करने में हेल्प करते हैं. फाइन. So now with this term we finish this video here. In the next class we have to discuss about the two terms which are left in this video, that is device drivers and application softwares. Till then, stay safe, stay healthy, keep learning, and thank you for watching this video.